Evening, Mr. Vishal Bharadwaj, who needs no introduction, popular Bollywood film director. Please have a seat. Thank you very much, sir, for joining us. We are also very happy to have with us from HarperCollins, the editor of HarperCollins, Mr. Shantanu Chaudhary. Thank you very much for joining us and gracing the occasion. Award translated in English by Narupama Dutt. We're looking at Pluto poems, but at the very as in the capacity of the writer to the poem, Gulzar Saab, who needs not much of the introduction, Indian poet, lyricist, a movie director, best known for his lyrics as the lyricist behind the song called Jai Ho, very Jai Ho at the 81st Academy Award, also the recipient of the Grammy Award. He's the recipient of the Padma Bhushan Sahitya Poetic Creation to Planet Pluto. In these poems, he addresses some of his favorite nature and time with his signature characteristic wit and brevity. Beautifully rendered into English by Narupama Dutt, Pluto Poems is a must-have title for Gulzar's admirers to savor to the afternoon of poetry here. I hope all of you will have a wonderful time, as I have had, interacting with Gulzar Saab on books we have worked together. Thank you to everybody at Landmark for hosting the event for us today. 6 years ago when I joined HarperCollins as an editor, I had a dream. And today, this dream sort of comes full circle. I have worked with Gulzar Saab. When I joined Harper, I had asked Gulzar Saab, "Aapke saath kab kitab kar sakte hain?" He said, "We'll do a book together soon." Subsequently, we worked on a couple of books on his. He translated a collection of poems by Sukrita, which we did. Then there was a book on his poetry by somebody else, which we did. But this is the first time that we are publishing him as a poet. And Pluto is the collection. It's a wonderful collection of poetry, as all his poetry is. And this dream of mine is doubly fulfilled in having Vishal with us today, who actually is probably the true inheritor of Gulzar Saab's genius in both cinema and poetry. He's truly the inheritor, I'm telling you. And Vishal's presence is all the more important because Pluto is as much about, this collection of poems is as much about Pluto as it is about Vishal, because the book is dedicated not to Pluto but to Vishal. And it has got a lovely, lovely poem. I hope Gulzar Saab will read that in the course of the afternoon today. Lovely, lovely poem that he has on the two of them breaking traffic rules and jumping red lights just to prove that we are still alive and just not living. So on that note, I'll ask Vishal to do us the honors. Thank you so much again. Please unwrap the book for us. Still. With that, congratulations to Gulzar Saab. Thank you very much, Vishal Saab, for launching the book, as well as to the publishers, HarperCollins. Congratulations for the release of the book. A fascinating collection to be inspired by Pluto, written by Gulzar Saab. May I request Vishal to say a few words? कि यहाँ मेरा ऑनर हो रहा है बुक रिलीज से ज़्यादा कि मैं ही बुक रिलीज कर रहा हूँ, ये मेरे लिए ऑनर है. So this is I never imagined in my life that one the day will come where Gulzar Saab will dedicate one book to me and I'll be releasing that book. So I'm speechless and I can't explain my feelings, because when I came to Bombay, my only dream was to do one song with Gulzar Saab when I came in 90. And now, I
इसमें जो एक पोएम है वो हैदराबाद में हुई थी जब गुलजार साहब हम लोग किसी फिल्म फेस्टिवल के लिए थे, और वो चीज़ गुलजार साहब से मैंने सीखी कि किसी शहर में जाके बगैर किसी मकसद के ऐसे घूमना, कि बगैर कोई कहीं जाना नहीं है, कहीं पहुंचना नहीं है, बस ट्रैफिक में फंसना है, रेड लाइट तोड़नी है, कुछ नहीं करना, कहीं किसी से मिलना नहीं है, सिर्फ उस शहर में घूमना है। तो ये बेमकसद बेवजह सड़कों पे घूमना, वहीं से आई थी गुलजार साहब का वो जो ऑब्जर्वेशन है लाइफ का, रिलेशनशिप्स का, वो सब बयान होता है कि क्यों वो सब चीज़ें देख पाते हैं, जिस अंदाज से देखते हैं जो हम नहीं देख सकते। सो आई एम वेरी हैप्पी एंड ऑनर्ड शांतनु, थैंक यू। Oh, check this. And now, without much ado, I'd like to hand it over to Gulzar Saab to address this very special gathering here with us for the launch. Thank you. तमहीद जिसे कहते हैं ना, प्रीफेस, जो वो विशाल ने आपको बता दी, और ये बता दिया। हैप्पी टू सी सर सब है। ओके, ये नज़में कैसे ढूंढते हैं, और विशाल के साथ ही निकल गए थे, और वही वाकई है। He very much deserves it, इसीलिए ये किताब मैंने उसको डेडिकेट की, and he deserved it really, because I've picked up a number of poems roaming around with him, and picked up like that only, कि जब ये मालूम हो, आप ये बंद कर देंगे, कि जब ये मालूम हो कि आपको, आप चारों तरफ घूम रहे हैं, एक शहर में घूम रहे हैं, और कहीं कोई जाना नहीं, कहीं कोई मंदिर नहीं, कोई ठिकाना नहीं है, और ये पता नहीं कि क्यों निकल रहे हैं, और कोई देख भी रहा है तो उसे आनंद पासपाए, एक और कोई निकल के चला गया। तो आप अपना एग्जिस्टेंस कैसे प्रूव करते हैं कि सिग्नल तो वो कोई गाड़ी दे के जाएगा यहाँ से, और किसी की बोट में कोई टर्न कर रहा था, उसके मोटर के सामने आ गया, हटना सामने जानता है क्या? तो ये सडनली रियलाइज कि हाँ, आपकी एग्जिस्टेंस नोट की जा रही है, and that's one way of getting yourself noted and realizing that you exist and that you are there and you are not without a name. And that's how that scribbled over that poem while roaming around with him in Hyderabad. It was in Hyderabad. और I said ये लम्हे बड़े कीमती होते हैं, उससे कि बनिस्बत इससे कि बैठ के सोचा जाए, आप बैठ के कहें कि हाँ क्या घने बादल छाए हैं, क्या घने बादल बहुत जबरदस्त है, तो लेकिन वो छींटा जो अचानक मुंह में चला जाए, या आँख के अंदर जब पड़ जाए, तो हैज़ अ डिफरेंट मीनिंग, और उसका एहसास अलग हो जाता है। वरना तो आदमी सीलन महसूस कर लेता है, वो गीला पानी महसूस कर लेता है, और गुजर जाता है वहाँ से। तो ये जब सारी इस तरह के छोटे छोटे से लम्हे जिनमें से गुजरते रहो, अगर आप उन्हें जमा करके देखें तो सच कहिए तो जीने के लम्हे वही थे, और वो सारी उम्र बेमानी थी, सिवाय उन लम्हों के जिन लम्हों में आप, छोटे छोटे लम्हों में जिनमें आप जिए, और बाकी तो फलसफा है, या बाकी आप इंटरप्रिटेशन है, जो भी आप करते हैं। लेकिन इन लम्हों को जब जमा कर लें तो उन्हें नज़्में कहता हूँ, मैं उन्हीं को नज़्में कहता आया हूँ। और ये इन लम्हों को जो बहुत छोटे छोटे से थे, जब ये बहुत से जमा हो गए, काफ़ी सारे, अदर देन द लॉन्ग पोएम्स व्हिच आई हैव बीन राइटिंग, या जो गाने लिखता रहा हूँ विशाल के साथ, खासतौर पे सबसे ज़्यादा, सबसे बड़ा काम मैंने विशाल के साथ किया हुआ आफ्टर पंचम, बिकॉज पंचम वॉज एट वन टाइम मेजर वर्क जहाँ तक काम किया था। उसके बाद विशाल के साथ करते करते ज़्यादा साल काम किया, ज़्यादा लिखा भी ज़्यादा। तो वो जब जमा हो गए तो वो बड़े छोटे छोटे लम्हों को मैंने एक जगह समेट के, एंड इट सो हैपेंड इन दोज डेज कि प्लूटो का दर्जा
साइंसदानों ने उससे छीन लिया। And that Pluto is not a planet anymore. And that was the announcement. तुम हम में से नहीं हो, हमारे 9 ग्रहों में से तुम नहीं हो, अब हम 8 ठीक है, इस फैमिली में हमारे सोलर सिस्टम में से तुम नहीं हो, तुम प्लैनेट नहीं। एक तो वो छोटा बेचारा और एक सबसे दूर, और उसके साथ ये ट्रीटमेंट कुछ भला नहीं लगा मुझे, और बहुत छोटा। तुम्हें कुछ इस तरह का एहसास हुआ है, मैं आई बिलोंग टू good, very well doing business family, my parents and my brothers and my sisters. तो मुझे घर में कहा करते थे, ये एक निराशी पैदा हो गया। He doesn't belong to us. He is not one of us really. ये अपनी धुन में लगा। मुझे लगा मेरी हालत तो इसी प्लूटो में जैसी है। ये प्लूटो में इसे छोड़ दिया गया। और कभी ये होता है कि वो देखते हैं बड़ा मशहूर हो गया, इसका नाम पड़ा भाई तेरा, क्यों भाई सुना तुझे और इनाम मिला, एक और डिग्री मिल गई है, तो अपना भी लेते हैं। और फिर खबर सुनी कि प्लूटो का जो दर्जा है वो दोबारा रिकंसिडर किया जा रहा है। हाउ मच इट रिजेंबल्स, ये सारे हालात मेरे जैसे हैं इसके बेचारे के। तो वो सारी छोटी छोटी जो नज़में थी, मैंने प्लूटो के नाम जमा की और उनका नाम प्लूटो रख के ये सारी नज़में पब्लिश करनी और छपवानी। That's how the name of Pluto came to this book. फिर वो हिंदी और उर्दू दोनों ज़बानों में पब्लिश हुई थी। एंड हमेशा एक बात चलती रहती थी, मेरी नज़में पहले पवन जी ने ट्रांसलेट की थी बहुत, और अचानक निरुपमा के साथ बात हुई, निरुपमा ने जिक्र किया, निरुपमा दत्त चंडीगढ़ में है, तो मैं ट्रांसलेट करना चाहती हूँ मैं आपकी पोएम्स को, तो मैं प्लेजर मेरे लिए, और क्या अच्छी बात हो सकती है कि कोई करना चाहता है ट्रांसलेट। And then I remembered that Nirupama was the first one who had translated my Triveni and other poems way back, about 20 years back or 25 years back, when she was with Indian Express in Chandigarh. So she was actually the first translator of my poems, and now she is the latest translator of my poems with me. And I'm missing, I wish Nirupama, if she could come from there, she could be here, but in another, any function or any moment, when we release in Delhi now, so I'm sure she will be there with us, all of us. But saying this, Nirupama has done a wonderful job, very, very well done. Over and above that, वो सारे ट्रांसलेशन लेके जिस वक्त मैं शांतनु के साथ बैठा यहाँ रिवाइज करने के लिए, एंड आई न्यू द वे ही रिप्लेसेस हिंदी का एक्सप्रेशन, इस लफ्ज का एक ये वर्ड देख लीजिए, अच्छा इसको अगर उल्टा करने, इस लाइन को ऊपर करने, दैट इज वेयर द एडिटर्स वर्किंग, एंड आई थिंक दिस इज द बेस्ट एडिटेड बुक बाय शांतनु फॉर मी, एंड दिस इज द बेस्ट पब्लिश्ड बुक for you to finally evaluate it, judge it, or whatever you feel about the book. This is the story of this book, Pluto, and this is the story of Vishal and me. And that's what it is. Thank you very much, Tulsarji. Any possibility of us hearing any of the poems? एक आपकी जो poem है, उसका नंबर बताइए, उसमें से क्या है? 116 चांद की रातें। शब्द कुछ अपने स्किल के बारे में भी कह दीजिए। These sketches, I think the credit goes to Shantanu because he had seen my scribbling and my this kind of indulgence with charcoal. जो मैं किताबों में या कॉपी में करता रहा, मैं हॉबी ऐसे ही शौकिया, I'm no artist, कोई मैं ये नहीं कर कोई पेंटर हूँ या आर्टिस्ट हूँ, लेकिन ये चारकोल के साथ खेलते हुए I've been doing it for a long time. He saw them and he selected them and he said, let's publish this also.
तो एक दफ़ा पहले भी मुझसे कहा गया था तो मैंने, लेकिन मराठी की कुछ पोएम्स, कुछ स्टोरीज के लिए आई हैव डन इट और अपने छोटे अरुण छोटे जिनका ऋतु रंग निकलता है मैगजीन, उनके लिए उन्होंने कहा था कि हमारे लिए कुछ बना के दीजिए, तो फ्यू इलस्ट्रेशंस आई ट्राइड एंड पब्लिश्ड विदाउट द नेम। तो मैं कहा नहीं ये नाम मत देना, तो देखें तो सही से लगता है। तो दिस टाइम आई टुक द करेज कि मैं ये जो शांतनु ने सिलेक्ट किए हैं, तो इतनी हिम्मत की अच्छा मैं का नाम दे दे किसी को, वरना तो चुप रहेगा, कोई गाली भी देगा तो पता नहीं चलेगा किसको भी, तो पता तो चले अगर ये मेरी है तो लेट मी ओन इट, बट आई एम हैप्पी दैट पीपल लाइक इट। अच्छे काफी पसंद आई लोगों को स्केचेस में छोटे मोटे भी, तो पहली बार ये हिम्मत की मैंने, और बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने जिक्र किया इस बात का, थैंक यू। मुझे बहुत मालूम है, बहुत पेंटिंग कर चुके हैं मैं देखा है। मैं जस्ट अ हॉबी, हॉबी मतलब इट इज जस्ट एन सॉर्ट ऑफ इंटरेस्ट एंड अ लिटिल डाइवर्शन। आपको कहीं न वैसे इन फाइन आर्ट्स आई फील दे ऑलवेज ओवरलैप ईच अदर, म्यूजिक ओवरलैप से पेंटिंग एंड पेंटिंग ओवरलैप, पोएट्री एंड पोएट्री ओवरलैप म्यूजिक, ऑल क्रिएटिव फाइन आर्ट्स जितने हैं वो एक दूसरे को ओवरलैप जरूर करते हैं। आपको नज़मों के अंदर पेंटिंग की इमेजेस मिलेंगी जिसमें रंग भी हैं और जिसमें सूरतें भी हैं, जिसमें स्केचेस भी हैं, और आपको पेंटिंग्स में अक्सर नजर आ जाती है कि इट्स लाइक अ पोएम, सो इज द सॉन्ग्स ऑफ म्यूजिक, सम सॉन्ग ओवरलैप विद ईच अदर। अगर आप ये ना लें मोबाइल तो अच्छा है, आपका मेहरबानी होगी, बहुत ऊँचा लगता है, खासतौर पर जब चला जाता है ना ऊपर फेसबुक पे और यूट्यूब पे, हाँ क्योंकि यहाँ पे नहीं रहता और आपके पास भी नहीं रहने वाला, ये भी चले आपका भी, हाँ मैं पैसे बंद कर दी। शराफत कहने की काफ़ी होती है, एक को बहुत सुन लेना चाहिए ना। मुहावरा ये है कि कहो बहू को और बेटी को सुना। सीख जाना चाहिए, जरूरी नहीं कि आप ही को कहा जाए। बहरहाल, so that's the story of my painting. Okay, and I'll leave it at this point. आपको इसका तारुफ तो करा चुके हैं विशाल की। कहीं जाना नहीं है, बस यूं ही सड़कों पे घूमेंगे। Let's move on to this. आपके पास कुर्सी नहीं है, कुर्सी आपके लिए, सत्या के लिए अगर कुर्सी कोई अरेंज कर सकते हैं आप। नहीं वो आ जाएगी, कुर्सी आ जाएगी, आप बैठ। कहीं जाना नहीं है, बस यूं ही सड़कों पे घूमेंगे। कहीं पर तोड़ेंगे सिग्नल, किसी की राह रोकेंगे, कोई चिल्ला के गाली देगा, कोई हॉर्न बजाएगा। कहीं जाना नहीं है, बस यूं ही सड़कों पे घूमेंगे। कहीं पर तोड़ेंगे सिग्नल, किसी की राह रोकेंगे, कोई चिल्ला के खोलेंगे, कोई चिल्ला के गाली देगा, कोई हॉर्न बजाएगा। जरा एहसास तो होगा कि जिंदा है, हमारी कोई हस्ती है, हमारी कोई हस्ती है। इसी नज़्म के साथ मैंने डेडिकेट की अंग्रेजी में, और मेरी अंग्रेजी में आप ना सुने तो अच्छा है। और इन्हीं सड़कों के ऊपर देखी हुई चीज़ें हैं, हुई चीज़ें हैं। रात को पेचीदा सड़कों पर चलते चलते, रात को पेचीदा सड़कों पर चलते चलते एक साये का पाँव उलझा अपनी ही परछाई से। रात को पेचीदा सड़कों पर चलते चलते एक साये का पाँव उलझा अपनी ही परछाई से। लैंप पोस्ट के नीचे गिर के मौत हुआ, शायद वो भी अंधेरे की नाजायज पैदाइश था।
नुक्कड़ पे जो लाल सुर्ख एक पोस्ट बॉक्स है, नुक्कड़ पर जो लाल सुर्ख एक पोस्ट बॉक्स है, मैन ईटर है, उसके पेट से लोगों की आवाजें आती हैं। नुक्कड़ पर जो लाल सुर्ख एक पोस्ट बॉक्स है, आपने बिल्कुल लाल पहना हुआ था। नुक्कड़ पर जो लाल सुर्ख एक पोस्ट बॉक्स है, मैन ईटर है, उसके पेट से लोगों की आवाजें आती हैं। कल ही जब उसके मुंह में एक चिट्ठी डाल रहा था मैं, उसने मेरे हाथ की सारी उंगलियां खा ली। मैन ईटर है, नुक्कड़ पर जो लाल सुर्ख का एक पोस्ट बॉक्स है। तो मैंने चांद पे तो कॉपीराइट है। जंग लगे इस चांद को मैंने कितना रगड़ रगड़ के रेती रेत मार से साफ किया है। इमेजिन मून ब्लेड की तरह इस तरह से कर थोड़ा थोड़ा करके बड़ा होता है, बढ़ता है, और उसके एजेस कहीं कहीं फेड आउट कहीं। जंग लगे इस चांद को मैंने कितना रगड़ रगड़ के रेती रेत मार से साफ किया है। किंगरे टूटने लगते हैं अब उसके किनारे, उसकी जो धार है, हिंगरे टूटने लगते हैं अब घिस घिस के जब जंग हटाता हूं लोगों से। कुंद ना हो जाए, वो ब्लंट ना हो जाए, कुंद ना हो जाए इस चाकू जैसे चांद की धार कहीं, कुंद ना हो जाए इस चाकू जैसे चांद की धार कहीं। काली अंधेरी रातें जब काटनी होंगी, ये चाकू फिर काम आए। इसमें कुछ है तो निकाल के दीजिए, आप बताइए। वो जिंदा थी, मैं जब सोया हुआ था। ये जो कैफियत है महसूस करने वाली है। ख्वाब में आप मिले, ख्वाब में देखा, और फिर ख्वाब में जिंदा जब मिलते हैं। वो जिंदा थी, मैं जब सोया हुआ था, वो मेरे जागते ही मर गई। वो जिंदा थी, मैं जब सोया हुआ था, वो मेरे जागते ही मर गई है। यही खसलत है ख्वाबों की, नेचर ऑफ द ड्रीम्स। वो जिंदा थी, मैं जब सोया हुआ था, वो मेरे जागते ही मर गई है। यही खसलत है ख्वाबों की, वो कितनी बार आएगी, मैं कितनी बार मारूंगा। Most ardent reader of mine. Thank you. This is what it reflects. उसमें रिफ्लेक्शन होगा जहां रुका हो। बूंद से लेकर पूरे एक समंदर तक कहीं भी रुकता है पानी, तो आंख खुली रहती है उसकी, सारे अक्स उतारता है। एक और रिफ्लेक्शन। बूंद से लेकर पूरे एक समंदर तक कहीं भी रुकता है पानी, तो आंख खुली रहती है उसकी, सारे अक्स उतारता है। पानी की एक बूंद है शायद, पूरा समंदर अपनी आंख पे आता है। तेज धार की तरह काटता गुजर गया। वो जो एक ख्याल था, तेज धार की तरह काटता गुजर गया। खून के कतरे कतरे से उबल पड़े थे जिस्म पर, हमें बॉडी। वो जो एक ख्याल था, तेज धार की तरह काटता गुजर गया। खून के कतरे कतरे से उबल पड़े थे जिस्म पर। ठंडा पड़ के बूंद बूंद पानी बन के बह गया। ठंडा पड़ के बूंद बूंद पानी बन के बह गया। और सब्जे की तरह खिला हुआ है आज मेरी नज़र पर। मैं लफ्जों के अंदर लपेटे हुए लफ्ज और लाइनों की गिरों पे गिरने बांट कर
नज़्म का एक फलता बनाकर कई कटी नब्ज से बहता खून रोकने की सही कर रहा था। नाउ सी दिस होल प्रोसेस ऑफ अ पोएट, वो सारे जख्म देखता है, वो जहाँ कट्स पड़ते हैं वो देखता है, और उसके लिए क्या कर रहा है शायद। मैं लफ्ज़ों के अंदर लपेटे हुए लफ्ज़ और लाइनों को गिरों पे गिरे बांधकर नज़्म का एक फलता बनाकर कटी नब्ज से बहता खून रोकने की सही कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ। All that he can do. मैं लफ्ज़ों के अंदर लपेटे हुए लफ्ज़ और लाइनों की गिरों पर गिरे बांधकर नज़्म का एक फलता बनाकर कटी नब्ज से बहता खून रोकने की सही कर रहा हूँ। ये अल्फाज हथियार की धार को कुंद कर सकते हैं, उनके खून को रोक सकते नहीं। मेरे साथ बैठकर ये नज़्म रोज शाम को शराब पीती है, मैं तो सिर्फ एक दो भी जाम उतार लेता हूँ। ये नज़्म रात देर तक सुराही के गले से लग के बैठी रहती है। मेरे साथ बैठकर ये नज़्म रोज शाम को शराब पीती है, मैं तो सिर्फ एक दो ही जाम उतार लेता हूँ। ये नज़्म रात देर तक सुराही के गले से लग के बैठी रहती है। इसको तो कभी नहीं चढ़ी, मगर मुझको नज़्म कितने रोज तक उतरती ही नहीं। अचानक तुमको देखा आज फ्लाइट में, लगा तुम फिर अकेली हो, और उसके बाद लॉस्ट एंड फाउंड के काउंटर पे भी जाते हुए देखा। तुम्हारी कुछ भी खो देने की आदत नहीं जाती। फाउंड के काउंटर पे आया था, जहाँ फ्लाइट में कोई चीज़ों की तफसील लिखते हैं, डिटेल्स लिख के देनी पड़ती। हाँ, फॉर्म सामने कर देता हूँ। जिस दिन विशाल की नज़्में शांति में पब्लिश करेंगे और वो तैयार हैं, और मुझसे मैं हर बार वेट करता हूँ तो विशाल को कम हो गए, और उस दिन मैं आऊँगा और मैं सुनूंगा, वो बोलेंगे। ठीक। Firstly, let's give a big and जोर से तालियां बजाएं। बहुत बहुत शुक्रिया सर। आप बार बार तालियां बजाने को क्यों कहते हैं? लोग खुद खुश होंगे तो बजा देंगे। शुरू से आप अच्छा तू बस हम याद दिला रहे हैं उनको। वो मदारी के तमाशे हम करते हैं। Okay, thanks for the question. So we are sure that a lot of you have come here particularly to ask and find out a little bit more about Gulzar Saab and his works. It needs no introduction. मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ सर, और सर मैं भी सॉन्ग्स लिखता हूँ सर, तो सर आपसे मिलने का आज बहुत बड़ी ख्वाहिश थी जो आज पूरी हो गई सर। थैंक यू। सर मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ, जब सर आप पहली बार बॉम्बे आए थे तो आपके मन में क्या ख्याल थे सर? कि मैं बम्बई आ गया। ये जी जो अभी कर रहा हूँ आप लोगों के साथ ही एक्सपीरियंसेस बांटने का, इसीलिए लिखा जाता है, टू शेयर लाइफ विद अदर्स, हाउ यू ऑब्जर्व लाइफ, हाउ यू सी लाइफ एंड हाउ कलेक्ट द मोमेंट्स व्हिच यू हैव कलेक्टेड, कि वो जो लम्हे आपने जमा किए हैं उनमें कोई बात है, कोई वजन है, या उनमें कोई रस है, या उनमें कोई बात फन की है, तो आप दूसरों के साथ बांटिए। अब मैं वही कर रहा था। अच्छा, इसको मार्केट में सक्सेसफुल बनाने के लिए क्या क्या तैयारी की आपने? इसको बुक को नहीं, मैंने आपको इन्वाइट किया ताकि आप खरीदें, है ना? अगर आप खरीदेंगे नहीं तो क्या फायदा होगा? सवाल पूछने का I don't think there are 9 lines. I think 7 is the line. 7 is the line. क्योंकि I had to somewhere divide this. while selecting the pictures में छोटी कौन सी है और बड़ी कौन सी है, तो बड़ी और छोटी नज़्म तो होती नहीं, नज़्म अपने आप में पूरी होती है, चाहे वो 3 लाइन में हो, चाहे 5 लाइन में हो, चाहे 7 में हो। इससे अपना किसी का कद छोटा रह जाता है, किसी का बड़ा, लेकिन वो है पूरी अपने आप में नज़्म। तो मुझे कहीं ना कहीं उसका मार्क करना था कि इनको मैं दूसरे कलेक्शन में दूँ या ना दूँ, या दूसरे कलेक्शन में देंगे, तो मैं उसकी मैक्सिमम लेंथ 7 की 7 मिसरों तक की
ध्यान में रख के मैंने वो नहीं डेवलप कर दिया। दैट वाज द वे ऑफ सॉर्टिंग इट आउट। उसका प्लूटो के पद से, प्लूटो की साइज के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन ये कि वो 7 लाइन में 7 मिसरे, हमारे मुहावरा है वो 7 रंगों का, 7 समंदर का और 7 आसमान का, उससे चला। थैंक यू सर। वो बहुत ज़रूरी नहीं कि वो मेरा ही इंटरप्रिटेशन हो, और वही आर्ट की सबसे बड़ी खूबी यही होती है कि उसको उतना खुला रखो और उतनी जगह पे छोड़ दो कि हर आदमी उसके अंदर अपनी कैफियत महसूस कर सके। मैं जैसे गालिब के शेर अगर आज पसंद है, अगर सुनता हूँ तो उसमें गालिब की कोई ना कोई कैफियत होगी अपनी, जो शायद मुझ पे अप्लाई आज नहीं, लेकिन उस शेर के अंदर उन्होंने उतनी जगह छोड़ी हुई है खाली कि वो ज़िंदगी का एहसास जो है वो आज भी मुझ तक पहुँचता है, इसलिए मैं वो देख पाता हूँ। आपने कहा नहीं आता। नमस्ते, मेरा नाम प्रेक्षा है जी। मुझे पूछना था कि मैंने ये नोटिस किया है कि उर्दू लिटरेचर बहुत ही कम होता जा रहा है आजकल इंडिया में। साबित हसन मंटो की किताब भी सिलेबस से निकाल दी गई थी पंजाब और चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी से, और इतने उर्दू राइटर्स भी नहीं बचे हैं, और आपकी किताब भी ट्रांसलेशन नहीं आई है प्लूटो देखा जाए तो। क्या ज़माना गया उर्दू पढ़ने का? नहीं, मेरा ख्याल है उर्दू समझने में थोड़ी सी गलती हो रही है कि आप जो ज़बान बोल रही हो, जिस ज़बान में आपने बात की है, ये क्या है? उर्दू। जो फिल्मों में आप ज़बान सुनते हैं वो क्या है? तो उर्दू का ज़माना कैसे चला गया जब 90% आपकी ज़बान सिनेमा में भी वही है उर्दू। उर्दू बदलती है, उर्दू ज़बान जो जिंदा है वो अपने दौर के साथ बदलती रहेगी और बदल रही है, और वही खूबी है उस ज़बान की कि वो हर वक्त में, हर दौर में अपने आप को पेशअप कर लेती है या अपडेट कर लेती है। हम जो ज़बान बोल रहे हैं आज भी 80-90% ही उसके अल्फाज उर्दू के हैं, और उर्दू में जो अल्फाज आए हैं वो यहीं की दूसरी ज़बानों से, जिन्हें हम कहें प्राकृत कहें या भोजपुरी कहें या अवधी कहें और खड़ी बोली, हिंदी भी उसी में से बनी और उर्दू भी उसी, वरना ट ठ ड ड़ ना कहीं अरबी में है ना कहीं फारसी में, ये आप भोजपुरी से, अवधी से यहाँ से लिया गया है। भ फ थ ठ ढ जो हम ए के साथ हैं, ये सारे संस्कृत से आए हुए हैं और ये उर्दू का हिस्सा है। तो वो अल्फाज अपने आप हमारे माहौल में है, हमारी संस्कृति में, हमारी सभ्यता में, इसलिए उर्दू इतनी आसानी से अपनी शक्ल तैयार कर लेती है और नहीं। तो उर्दू से कोई शिकायत नहीं है, उर्दू को कोई नुकसान नहीं हुआ, उर्दू कहीं पीछे नहीं पड़ी, बढ़ रही है। उर्दू के पास कभी कोई सूबा, कोई इलाका नहीं था, आज उर्दू के पास एक पूरा मुल्क है जिसे हम पाकिस्तान कहते हैं, है ना? तो बढ़ रही है। जैसे मैं कहूँ कि बाहर जितनी उर्दू की बस्तियाँ बन गई तो उर्दू फैलती जा रही है। जिस चीज़ की कमी यहाँ महसूस हो रही है वो उर्दू की स्क्रिप्ट है। उर्दू का कोई राइटर ऐसा नहीं है, और गालिब, मीर, यहाँ तक के दबीर से लेकर कोई ऐसा राइटर क्लासिक से लेकर आज के ज़माने तक जो विच इज़ वर्ल्ड है, जो आपको देवनागरी में ना मिलता। तो मंटो उर्दू में अगर कहीं नहीं किसी स्कूल में या कॉलेज में है तो शायद ना पढ़ाया जा रहा हो, लेकिन मंटो उर्दू का राइटर है, अंग्रेजी और हिंदी में पढ़ाया जा रहा है जगह जगह कॉलेजों में, है ना? तो वो किसका, वो कौन है? वो क्या वो उर्दू नहीं है? वो हिंदी जहाँ पे है जिन कॉलेजेस में वहाँ पढ़ाया जा रहा है, अंग्रेजी जिन कॉलेजों में वहाँ पढ़ाया जा रहा है। तो कैसे मंटो की कीमत कम हो गई और किसी भी उर्दू राइटर की कैसे कम हो गई? गालिब पढ़ाया जा रहा है, फिराक पढ़ाए जा रहे हैं आज भी, वो तमाम राइटर्स उर्दू के। तो उर्दू को समझने में इतनी सी गलतफहमी है हमारे कि उर्दू स्क्रिप्ट की कमी हो गई है, क्योंकि देवनागरी हैज टेकन ओवर विच इज़ मोर प्रिवेलेंट इन इंडिया, और जो बड़ी आसान स्क्रिप्ट है और दूसरी हिंदुस्तानी भाषाओं से रिजेंबल करती है जो संस्कृत से आई हुई है, इसलिए वो आसान है। लेकिन उर्दू देखने की, उर्दू बोल रहे हैं, सुन रहे हैं, सब कुछ है, पर देखने की तरह है, दिखाई कम दे रही है। आई विश के उर्दू स्क्रिप्ट जिसका इतना खूबसूरत कैलीग्राफी है, आई विश के उस कैलीग्राफी को अपनाया जाए और लिखा जाए और उर्दू की स्क्रिप्ट और ज़्यादा पढ़ी जाए। बहुत
नेट पे इंटरनेट पे कुछ आपके लड़के प्रेमियों से पूछा, वो लाइन है मुश्किल है आकाश पे चलना तारे पैरों में चुभते हैं, वो क्या है? उसकी अगली लाइन क्या है आप बताइए। मुझे नहीं मिली, ये आपकी लिखी हुई है। हाँ मुझे मुझे जमानी याद तो नहीं, लेकिन वो त्रिवेणी मैं आप तलाश करके आपको, आप किसी को याद हो और कोई बता सकता हूँ, आपको याद है? मेरे पास आपकी त्रिवेणी किताब इसकी है। इस ये त्रिवेणी होगी उसमें। अच्छा वो त्रिवेणी है, वो त्रिवेणी की है वो लाइन उसमें है ना वरना। अच्छा तो उसे त्रिवेणी में जरा ढूंढ के बता दीजिए। Gulzar Saab's work for the last 10-15-20 years. आपने इनके poems को compose किए हैं, जो फिल्मी गाने are also, his film songs are also poetry. Like it's a form. And apart from that, बूढ़े पहाड़ों पर या इश्का इश्का, you have composed his poems, you know, things that we say. What is the experience like? Because he is somebody who is not. These songs that you have composed in Bure Ishka are not songs in the traditional format of the song. What has been the experience of translating his poetry into a song? जो आई थिंक सबसे खूबसूरत बात उसमें वो होती है कि वो गाना इतना डीप हो जाता है कि वो पोएम से भर जाता है। नहीं तो यूजुअली क्या होता है, फिल्म सॉन्ग में बहुत कंस्ट्रेंट्स होते हैं और उसमें ज़्यादा अगर पोइट्री आए तो प्रोड्यूसर डायरेक्टर सबका एक एक वो रेजिस्टेंस होता है एक अच्छी चीज़ के लिए, किसी का भी होता है, स्पेशली पॉपुलर सॉन्ग में। गुलजार साहब ने जो सबसे खूबसूरत काम जो किया है कि वो बड़ा मुश्किल है कि मासेस और क्लासेस के लिए ऐसी चीज़ क्रिएट करना कि जो कि क्लास पढ़े तो उसे उसमें अपना दिखाई दे और मास उससे कनेक्ट कर सके। जो फिल्म सॉन्ग्स में गुलजार साहब ने जो क्रिएट किया है कि वो दे आर लाइक डीप पोएम्स, इफ दे आर रेड एंड इफ दे आर सung दे आर लाइक पॉपुलर सॉन्ग्स। So I think this is the great achievement any lyricist has ever achieved in films. Very special. Please note the cash point is in the other section. You need to go back. Please do hear it, sir. तो आज का जो बुक लॉन्च था उसके बारे में जानना चाहूँगा, किस तरह का बुक है प्लूटो के? वो तो इतनी देर हमने सुना गुलजार साहब की बहुत खूबसूरत नज़में हैं और प्लूटो के बारे में जो उन्होंने बोला कि वो जिस प्लैनेट को अभी बेदाखिल कर दिया गया है तो उससे वो बहुत आइडेंटिफाई करते हैं और बहुत ही खूबसूरत उनकी नज़में हैं उसमें। अच्छा, आप किस तरह से इंस्पायर्ड हुआ था उनसे, क्योंकि आपकी फिल्मों में जो है हमेशा गज़लें और इस तरह का जो फ्लेवर है देखने मिलता है, तो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? नहीं, मैं गुलजार साहब की पोइट्री से सिर्फ पोएम्स या म्यूज़िक के लेवल पे नहीं, पूरे एक मेरी फिल्मों में भी उनकी पोइट्री दिखाई देती है। जहाँ उनके गाने नहीं हैं वहाँ भी वो सुनाई देते हैं। तो आगे कुछ ऐसा कोई अपकमिंग प्रोजेक्ट जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहें? नहीं, अभी तो मैं काम कर रहा हूँ अपनी स्क्रिप्ट के ऊपर, अभी तक कुछ नहीं है। ओके, थैंक यू सो मच।